سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ باشولو خاتون ملک شاہ کی جدائی میں روتی جاتی ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات سلطان ملک شاہ سے ہوتی ہے، جن کے حضور حسن صباح کو لایا جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، جو معلومات تم نے ہمیں دی اس کا شکریہ، ہم نے اس گھات کو ختم کر دیا جو میرے بیٹے پر لگائی گئی تھی۔ حسن صباح کہتا ہے، خوشخبری کے انتظار میں ہمارا برا حال ہو گیا ہے سلطان معظم۔ پھر حسن صباح ملک تاپار کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں۔ ملک تاپار حسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، کچھ عرصے سے محل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ حسن صباح، اب سے تمہیں ایلچی کے فریضے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ حسن صباح یہ سن کر دنگ رہ جاتا ہے اور پھر اپنا سر ہم کرتا ہے، لیکن سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، آج سے تم ایلچیوں کے سربراہ ہو۔ حسن صباح اور حاجی نظام الملک اچانک سے سلطان کا یہ حکم سن کر چونک جاتے ہیں، جبکہ سلطان کہتے ہیں، تم نے اپنے فرائض سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ تمہاری اتنی کامیابیوں کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ تمہیں تمہارے فرائض سے بالا تر عہدے کی خوشخبری دی جائے۔ حسن صباح کہتا ہے، میں آپ کی تعریف کے لائق بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا سلطان معظم۔ سلطان اپنا سر ہم کرتے ہیں، جبکہ حسن صباح حاجی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ پھر سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، تاپار، تم مقدس ایمانتوں کی تلاش چھوڑ سکتے ہو۔ ملک تاپار یہ سن کر حیرانگی سے کہتے ہیں، کس وجہ سے سلطان معظم؟ سلطان کہتے ہیں، ہمیں شک ہے کہ ایمانتیں کوبل قلعے میں ہیں۔ سانجار کو قلعے میں گھسنے کی اجازت میں نے دے دی ہے، آپ ضروری جگہوں پر معلومات بھیج دو۔ وہ کچھ وقت کے لیے سانجار کو ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ حاجی بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، اور دکاس کے مسئلے کو ہم سانجار کے واپس آنے کے بعد حل کریں گے۔ اب ایلچن خاتون کے خط کے متعلق اس معاملے میں جو بھی شامل ہے سب کو جمع کرو، دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے۔ ملک تاپار اور حاجی نظام الملک اجازت لیتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب شلمزار کا محل دکھایا جاتا ہے، جہاں تورنا خاتون خواب میں کچھ بڑبڑاتی ہیں اور امیر التبر فوراً اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں پیاری بیٹی، میری آنکھوں کا نور۔ لیکن تورنا خاتون لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ سانجار کا نام لیتی ہیں، اور یہ سن کر امیر التبر کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ شدید غصے میں ہوتے ہیں۔ جبکہ پھر دوستو دوسری جانب اناتولیا کا سلجوق قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں ایلچن خاتون کے سرداران میں سے ایک سردار کہتے ہیں، آپ نے فساد پھیلانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے انہیں سزا دی ہے، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ لیکن دوستو یہ سردار ابو قاسم کا جاسوس بائبورا ہوتا ہے۔ بائبورا مزید کہتا ہے، ملک شاہ اور آپ کی زندگی لمبی ہو ایلچن خاتون۔ ایلچن خاتون پھر کہتی ہیں، میرے بابا سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد ہم واپس نہیں جا سکے اور ہمیں قبیلوں میں رہنا پڑا، لیکن اب فتنہ پھیلانے والے ختم ہو چکے ہیں اور اب ہمارے درمیان موجود جاسوسوں کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ بائبورا یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ ایلچن خاتون کہتی ہیں، اس کے بعد ہم ازنک میرے باپ دادا کوتلامش اوگلو کے محل میں جائیں گے۔ ایک سردار کہتے ہیں، کون ہے وہ جاسوس جس پر آپ کو شک ہے؟ بائبورا یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے، جبکہ ایلچن خاتون کہتی ہیں، میرے بھروسے مند لوگ کافی وقت سے ان غداروں کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ مجھے کبوتر کے ذریعے خبر بھیجیں گے، وہ جلد ہی پہنچ جائے گا، پھر ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ کون ہے غدار، پھر ہم سلطان ملک شاہ کو بھی اس کی خبر بھیجیں گے۔ سارے سرداران اس بات پر بڑے ہی حیران ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب شلمزار دکھایا جاتا ہے، جہاں امیر التبر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اسی دوران سپاہی آرباتور
अपने अमीर हजरत के पास आता है और कहता है, अमीर हजरत, कोवल किले से ये खत आया है। अमीर अल्तबर कहते हैं, वो अब मुझे किस मुंह से खत भेज रहे हैं। अमीर अल्तबर अरबातोर से खत लेते हैं और इसे जाने को कहते हैं और फिर इसके जाने के बाद अमीर अल्तबर मकतूब खोलते हैं और पढ़कर कहते हैं, तो तुम्हें लोहा चाहिए है ना? मैं तो कोविल को तुम्हारी मौजूदगी में तबाह करने वाला हूँ। अमीर अल्तबर खत को फाड़ने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान सिपाही सांजार अमीर अल्तबर के दफ्तर में दाखिल होता है और सांजार को देखकर अमीर अल्तबर कहता है, ये वाजिया है कि तुम मौत के ख्वाहिशमंद हो। अमीर अल्तबर फौरन अपना हंजर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांजार इनके हाथों को रोक कर इनसे कहता है, अपने गुस्से को एक दूसरे पर नहीं बल्कि हकीकी दुश्मन पर निकालने का वक्त है अमीर अल्तबर। फिर दोस्तों सांजार अमीर अल्तबर का हंजर वापस म्यान में रखता है और कहता है, मुझे आपसे एक अहम मसले पर बात करनी है। अमीर अल्तबर कहते हैं, मैंने कहा था कि तुम्हारा चेहरा मुझे यहाँ नजर ना आए, इसके अलावा बात करने को कुछ नहीं है। सांजार कहता है, आपकी बेटी को अगवा करने वाला आदमी मुकद्दस इमानतों के साथ कोवल किले में है। अंदर घुसने का वाहिद जरिया आपके लोहे का कारवान है। अपनी बेटी के इंतकाम और मुकद्दस इमानतों के लिए जो वो चाहते हैं आपको वो भेजना होगा और मैं भी उनके साथ हूँगा। अमीर अल्तबर कहते हैं, मुझे इस किस्म के खेल की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इंतकाम चाहिए तो मैं सीधा किले पर हमला करके मुकद्दस इमानतों को वापस लेकर किला इनके सरों पर गिरा दूंगा। सांजार कहता है, कोवल पर हमला करने की सलाहियत हम भी रखते हैं, लेकिन हमें जल्द हरकत करनी होगी। हमें रात के अंधेरे की तरह पोशीदा और हवा की तरह अंदर दाखिल होना होगा। लेकिन अमीर अल्तबर अपने सिपाहियों को बुलवाते हैं और अरबातोर समेत बाकी 2 सिपाही सांजार को अचानक से महल में देखकर फौरन तलवारें इसकी गर्दन पर रख देते हैं। अमीर अल्तबर कहते हैं, बाहर ले जाओ इसे और अगर ये मज़ाहमत करे तो जो जरूरी हो वो करना। इस दौरान तुरना खातून भी यहीं पर पहुंच जाती हैं और इनके हाथ में सांजार का दिया हुआ नीला रुमाल होता है। अमीर अल्तबर तुरना खातून की तरफ मतवज्जा होते हैं, लेकिन तुरना खातून सांजार की तरफ मतवज्जा होती हैं। अमीर अल्तबर कहते हैं, तुम क्यों उठ खड़ी हुई मेरी बेटी? ये शख्स जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है ये कारवान के जरिए अब कोवल किले में दाखिल होना चाहता है। तुरना खातून कहती हैं, अपनी तलवारें नीची करो। अरबातोर अपने अमीर हजरत की तरफ मतवज्जा होता है, लेकिन तुरना खातून कहती हैं, मैंने कहा है कि अपनी तलवारें नीचे करो। फिर अमीर अल्तबर अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं और अरबातोर अपनी तलवार नीचे कर लेते हैं और सिपाहियों के हमरा यहाँ से चले जाते हैं। जबकि फिर तुरना खातून कहती हैं, अगर ये आदमी मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में ना डालता तो मैं दुश्मन के हाथों में ऐसी सरजमीन पर होती जिसका आपको कभी भी पता ना चलता। अमीर अल्तबर कहते हैं, क्या यही वो आदमी नहीं है जिसकी वजह से तुम इतनी मुसीबतों में फंसी हो? तुरना खातून कहती हैं, बिल्कुल इसके मुखालिफ बाबा, मुझे तो इन सब मुसीबतों से बचाने वाला यही आदमी है। सांजार ये सुनकर मुतमईन हो जाता है, जबकि तुरना खातून कहती हैं, ये रियासत का खसूसी बहादुर है, आपको भी इस पर भरोसा करना होगा। अमीर अल्तबर ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, जबकि तुरना खातून कहती हैं, अगर आप वो नहीं करते जो इसने कहा है तो बहुत देर हो जाएगी, मुकद्दस इमानतें वहाँ से चली जाएंगी, फिर हम इस पछतावे के साथ कैसे जिंदा रहेंगे? अमीर अल्तबर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, लोहे का कारवान कल कोवल किले की सिमत बढ़ेगा। सांजार और तुरना खातून ये सुनकर खुश हो जाते हैं, जबकि सांजार इजाजत लेता है और यहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों तुरना खातून भी मुस्कुराती हुई यहाँ से चल पड़ती हैं, लेकिन अमीर अल्तबर इस बात पर मुतमईन दिखाई नहीं देते। फिर दोस्तों दूसरी जानब तुरना खातून की खादमा आईगुल खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अपनी बेगम साहिबा के पास आती हैं और कहती हैं, बेगम साहिबा, सांजार चाहता था कि ये मैं आपको दे दूं। आईगुल खातून फिर एक मकतूब तुरना खातून को देती हैं और तुरना खातून आईगुल का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर आईगुल खातून यहाँ से चली जाती हैं और तुरना खातून मकतूब में मौजूद ताज़ा फूल को पकड़ती हैं और मुस्कुराती हुई इसकी खुशबू सूंघती हैं। फिर तुरना खातून हाथ को खोलकर इसे पढ़ना शुरू कर देती हैं। हाथ में लिखा होता है, अपनी आंखें खोलते ही जैसे मैंने दिल दिया था, जिसका
मैं उड़ते हुए परिंदों और हवा से पूछता हूँ, वो मेरे दिल में होता है चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ, जिसके खूबसूरत बाल मेरी जिंदगी की वजह है। तुरना खातून ये पढ़कर मुस्कुराती हैं और हाथ पकड़कर कमरे की खिड़की के पास आती हैं और नीचे सिपाही सांजार गली में खड़ा होता है, जिसे देखकर तुरना खातून मुस्कुराती हैं और सांजार सिपाही फिर नीला रुमाल निकालकर इसे अपने सीने से लगाता है, जबकि तुरना खातून भी ऐसे ही करती हैं और नीले रुमाल को निकालकर अपने सीने से लगाती हैं और खुशी से मुस्कुराने लगती हैं। जबकि फिर दोस्तों सिपाही सांजार यहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी जानब सल्जूक महल में सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि अपने ईवाने आला से कहते हैं, मलिक तापार को हमले से एल्चन खातून ने बचाया है। हम पहले जाकर इसे बचा सकते थे, लेकिन एल्चन खातून की तरफ से भेजी हुई खबर मुझ तक नहीं पहुंची। क्या तुम सब महल में गाफलों की तरह सो रहे होते हो? कहाँ है वो खत? वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने तहकीकात की है। एल्चन खातून की तरफ से भेजा हुआ खत ताजुल मुल्क ने लिया था। सुल्तान गुस्से से ताजुल मुल्क की तरफ मतवज्जा होते हैं। ताजुल मुल्क इत्मीनान से कहता है, सुल्तान मुअज्जम, सफरिया खातून ने एल्चन खातून की तरफ से आने वाली हर खबर को सबसे पहले अपने पास लाने का हुक्म दिया था। जैसा कि आपको मालूम है सुल्तान मुअज्जम कि मैं खातून अव्वल के ओहदे का खसूसी आदमी हूँ, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। सुल्तान कहते हैं, तो ऐसा है, मैं अभी इसकी तहकीक करूँगा। अगर इसमें तुम्हारी गलती सामने आती है तो तुम इस ईवान से जिंदा नहीं जा सकोगे ताजुल मुल्क। दोस्तों ये सुनकर ताजुल मुल्क और तैरकन खातून के होश उड़ जाते हैं। फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, कामच, फौरी तौर पर खातून अव्वल के कमरे की तलाशी लो। और फिर हाजब कामच अपने सुल्तान के हुक्म पर सफरिया खातून की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन चालाक तैरकन खातून ने पहले ही इसका बंदोबस्त कर रखा होता है। फिर मलिक तापार कहते हैं, सुल्तान, आपकी गैर मौजूदगी में तैरकन खातून ने खातून अव्वल का ओहदा संभाल लिया था। मुझे हैरत है कि क्या इन्हें आपकी तरफ से फरमान मिला था। फिर तैरकन खातून कहती हैं, सफरिया खातून की बीमारी का आपको मालूम है सुल्तान मुअज्जम, और ऐसे हालात में सुल्तान की खातून होने के नाते खातून अव्वल बनना पड़ता है। रियासत के कानून सुल्तान के फरमान के बराबर होते हैं मलिक तापार। फिर सुल्तान मलिक शाह अपने ईवान से कहते हैं, यकीनन इन हालात में एक नुमाइंदे की जरूरत होती है, लेकिन सुल्तान की खातून ही वो नुमाइंदा होगी, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। तैरकन खातून ये सुनकर दंग रह जाती हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह मजीद कहते हैं, ताहम अपने तजुर्बे की वजह से तैरकन खातून अव्वल के ओहदे के लिए सबसे मुनासिब हैं। तैरकन खातून सुल्तान के हुक्म पर सर हम करती हैं, जबकि सुल्तान कहते हैं, यकीनन ये ओहदा सफरिया खातून के सेहतियाब होने तक रहेगा। इतने में दोस्तों हाजब कमच अपने सुल्तान के हजूर पेश होते हैं और कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम, हमने कमरे की तलाशी ली है। एल्चन खातून की तरफ से भेजा हुआ खत हमें दूसरे दस्तावेजात के साथ मिला है। ताजुल मुल्क ये सुनकर मुतमईन हो जाता है। फिर माजी का वक्त दिखाया जाता है, जब तैरकन खातून ने ताजुल मुल्क से कहा था, अब जाओ और ये खत सफरिया खातून के दस्तावेजात में रख दो, तहकीकात के दौरान ये इन्हें वहाँ से मिलेगा, इस तरह हम इल्जामात से बरी हो जाएंगे। ताजुल मुल्क मुस्कुराता है और वैसे ही करता है जैसे तैरकन खातून इन्हें बताती हैं, जबकि इधर सुल्तान मलिक शाह फौरन हाजब कमच से हाथ लेते हैं और इसे पढ़ते हैं। इतने में मक्कार तैरकन खातून कहती हैं, सुल्तान मुअज्जम, उनकी बीमारी का तो आपको मालूम ही है, लगता है कि उन्होंने ये खत दस्तावेजात के साथ रखा था, लेकिन वो आपको देना भूल गई हैं। इस पर हाजी निजामुल मुल्क और मलिक तापार बड़े ही परेशान होते हैं। इतने में सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, ईवान अपने इख्तिताम को पहुंचता है, अब से चाहे कोई भी वजह हो, मैं कोई भी गलती माफ नहीं करूंगा, ये सब जान लो। दोस्तों सब ही सुल्तान
के हुक्म पर सर हम करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान ताजुल मुल्क और तैरकन खातून बड़ी ही खुश दिखाई देती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब तैरकन खातून बतौर खातून अव्वल महल की गलियों में पहुँचती हैं और एक सरबराह खादमा ऊंची ऊंची सदाएं लगाती हैं, हमारी खातून अव्वल तैरकन खातून आ रही हैं। खादमा जोर से अपना आसा जमीन पर मारती हैं। फिर खातून अव्वल का कमरा तैरकन खातून के लिए खोला जाता है, जहाँ पहले से ही सारी खानदान की खवातीन और खादमाएं मौजूद होती हैं। तैरकन खातून अपने तख्त पर बैठती हैं और कहती हैं, ये सब जान लें कि इस महल में मेरी इजाजत के बगैर ना ही चींटी अपना घोंसला बनाएगी और ना ही मकड़ी अपना जाल बुनेगी। मेरी मदाहलत के बगैर एक मोमबत्ती भी नहीं खरीदी जाएगी और ना ही कोई चीज अपनी जगह से हिलाई जाएगी। महामलिक ये सुनकर मुस्कुराती हैं, जबकि खातून अव्वल तैरकन खातून कहती हैं, और जो भी मेरी अतात नहीं करेगा उसे भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस पर फिरदौस खादमा बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं, बैत करने की तकरीब शुरू की जाए। फिर महामलिक सबसे पहले अपनी वालदा के पास आती हैं और इनकी अंगूठी को बोसा देकर इन्हें मुबारकबाद देती हैं। फिर दोस्तों दूसरा नंबर गैवहर खातून का आता है, जो कि तैरकन खातून के पास आती हैं और इनकी अंगूठी पर बोसा देकर हिचकचाती हुई इन्हें मुबारकबाद देती हैं। इस पर तैरकन खातून बड़ा ही गरूर करती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि शतरंज खेल रहे होते हैं और इसी दौरान उस्ताद इस फैजारी वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क के पास आते हैं और हाजी कहते हैं, महल में मौजूद वो लोग जिनके अभी पर भी नहीं निकले वो हमसे भी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ कि मेरे मुखालफीन मुझे हर चाल में मात दे रहे हैं। इस फैजारी कहते हैं, बाज औकात अपने मुखालफ से आगे बढ़ने की बजाय रुक कर सांस लेना लाजमी होता है। दुश्मन की परवाजों को ऊपर से देखना चाहिए और छोटी छोटी हर तफसील को गहराई से जांचना लाजमी होता है। फिर इस फैजारी शतरंज की एक चाल चलते हैं और कहते हैं, ताकि हम उनको शिकस्त दे सकें। हाजी ये सुनकर अपना सर हम करते हैं और कहते हैं, चलो जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। अब हम अपने मसाइल को ऊंचाई से देखेंगे। इस फैजारी अपना सर हम करते हैं और हाजी फिर अपने जर्राह साज से कहते हैं, क्या तुमने तीर गिने हैं? जर्राह साज कहता है, जी हाजी हजरत मैंने गिने हैं। हाजी के ओहदे से वाबस्ता कोई भी तीर गुमशुदा नहीं है, इन्हें किसी ने भी चोरी नहीं किया है। हाजी निजामुल मुल्क हैरानगी से खड़े होते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? इस फैजारी कहते हैं, लगता है कि उन्होंने तीर की नोक पर ये निशानात किसी बाहर वाले से बनवाए हैं, लेकिन तीर की नोक पर इस तरह के गहरे और पोशीदा निशानात बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, ये कौन कर सकता है? इस फैजारी कहते हैं, इस फहान में लोहे के काम में इस तरह के माहिर बहुत कम लोग मौजूद हैं। ये निशानात किसने बनाए हैं? हम इसकी तहकीकात करेंगे। हाजी कहते हैं, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है, मैं तुम्हारी तरफ से खबर का मुंतजर हूँगा। इस फैजारी अपना सर हम करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क इस बात पर बड़े ही परेशान होते हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।